Hi friends, Namaskar. Welcome to the NORCET 8.0 recall. So in community health nursing, and ये questions relatively I would say कि easy to moderate type थे. कुछ questions थे, they were very good quality. बाकी general जो most commonly, most frequently asked topics होते हैं community health nursing के, those were the similar type of topics. Let us take the question number 1. Which of the following national health program uses 4D approach? Options are RBSK, RKSK, JSSK and JSY. So I think अगर आपको पता हो, आपको याद हो, हमने काफी डिस्कस भी किया है that राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम that talks about the 4Ds. That is the correct answer for you to mark. 2 minutes on this. What is राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? बेटा, this is the logo of RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. MCQ number 1. Who is a balak? Rashtriya is national, Swasthya is health, Karyagram is any program or policy. Who is a balak? What age group? Age group we take is 0 to 18 years. इसमें क्या करते हैं? इसमें 4 Ds आते हैं. What are the 4 Ds? 4 Ds are बेटा the defects, the childhood defects, the developmental delays, the deficiencies in childhood and the diseases of childhood. So ये 4 Ds हैं. इन 4 Ds के अंदर बहुत सारे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के different types of diseases are included into this. Another point जो आपको याद रखना है that there are 2-3 new conditions which have been added into this program. So इसके अंदर बेटा पहले 29 diseases 30 के करीब होते थे. Congenital hypothyroidism, sickle cell anemia, beta thalassemia add हुआ है alongside TB and leprosy भी अब इसके अंदर screening में add हुआ है. So बस ये याद रख लिए ये 0 to 18 year बच्चों के लिए है and it is for screening of children for the 4 Ds. What are the Ds? Defects in children, the diseases in children, the deficiencies in children and the developmental delays. इन बच्चों को स्क्रीन करते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम. Total for 32 conditions we will be screening them. Total for 32 conditions we will be screening them. Let us take on the next MCQ. This question is from chickenpox, infectious diseases, communicable disease. Of course, it's a big overlap between pediatrics, microbiology, medicine and community health nursing. Let us have a look at the MCQ. A community health nurse is educating patients about typical progression of the chickenpox rash. वो पढ़ा रही हैं, बता रहे हैं. So the initial characteristic lesion of the chickenpox rash is described as a macule that progresses to papule and a pustule. क्या ये option में है? Or it is a papule which progresses towards vesicle, that is water blister, or the lesion is with central ulceration and crusting या फिर raised erythematous plaque. क्या लगता है आपको? What is the best answer? So बेटा चिकन पॉक्स का जो रैश होता है that is a very typical rash. वो रैश जो है ये शुरू होता है मैक्यूल के साथ. What is a macule? Remember, याद रखें कि मैक्यूल एक छोटा सा raised area होगा and this raised area is flat raised area. So ये flat raised rash सा होता है and it is a macule. Small red spots से दिखेंगे. ये जो रेड स्पॉट्स हैं ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, बम्पी स्पॉट्स बनेंगे. पैप्यूल याद रखो, छोटी सी फिंसी टाइप. सो पिंपल या फिंसी टाइप दैट इज कॉल्ड एज पैप्यूल. मैक्यूल जो है वो एक रेज्ड एरिया, एक रेज्ड एलिवेटेड रेडिश पैच सा होता है, छोटा सा होगा. And then the characteristic feature in chickenpox is fluid filled blisters. फ्लूइड फिल्ड होता है, क्लियर फ्लूइड होता है जो कि क्रस्ट और स्कैब्स बनते हैं. प्लीज रिमेंबर, ये भी सवाल आता है कि जो स्कैब्स होते हैं, जो वो फ्लूइड फिल्ड फिल्टर है, ब्लिस्टर है, छोटा सा वेसिकल है, वो फटेगा एंड उसके ऊपर क्रस्ट बनेगा. क्रस्ट के बाद उसके ऊपर स्कैब्स बनेंगे. एमसीक्यू व्हिच कम्स इज जो स्कैब्स हैं आधे इन्फेक्टिव और नॉट. प्लीज रिमेंबर स्कैब्स आर नॉन इन्फेक्टिव. सो एक छोटे सी इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो इस तरह से दे कैन शो यू द इमेज बेटा. सो ये आप देख सकते हैं, ये स्टेज जो है यहाँ पे द वेसिकल्स हैव ऑलरेडी रप्चर्ड एंड यहाँ पे द वेसिकल इज ऑलरेडी देयर. छोटा सा पैप्यूल एंड बीच में हल्का सा फ्लूइड फिल्ड है. यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर टिपिकल फ्लूइड फिल्ड चिकन पॉक्स रैश विच आर वेसिकुलर.
तो अब आपको क्या लगता है, व्हाट इज द बेस्ट आंसर? इज इट अ पैप्यूल फर्स्ट ऑप्शन, इज इट अ पैप्यूल देन अ पुस्ट्यूल? पुस्ट्यूल क्या होता है? जिसमें पस हो, तो पस तो गलत बात होगी, ये तो गलत हो गया। अ नोड्यूल विद सेंटर अल्सरेशन एंड क्रस्टिंग, यस हो सकता है, बट इज इट अ टिपिकल प्रोग्रेशन इनिशियल लेजन? सो क्या ये इनिशियल होता है? इनिशियल ठीक है, देखते हैं, आगे देखते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, बट इट्स नॉट एक्चुअली अ नोड्यूल। नोड्यूल के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा। रेज्ड एरिथेमेटस प्लैग विद इरेगुलर बॉर्डर्स, ऐसा तो गलत है। सो डी तो बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन बी देखो, इट इज अ मैक्यूल दैट प्रोग्रेसेस टू अ पैप्यूल, छोटा सा रेज्ड बनेगा, देन अ वेजिकुलर और ए वाटरी ब्लिस्टर, ये इसका टिपिकल इनिशियल लेजन होता है। तो ऑप्शन बी इज द बेस्ट वन टू बी मार्क इन दिस एमसीक्यू। ऑप्शन सी मैं कह रहा हूं कि इट मे बी राइट, मे नॉट बी राइट, बट ये नोड्यूल तो नहीं होता, राइट? सो दैट इज द रीजन हम ऑप्शन सी को भी गलत बोलेंगे। Let us go to the next MCQ. In a community health follow-up after scabies treatment. Again, ये question बेटा dermatology या skin diseases, medicine, pediatrics काफी जगह पे ये पढ़ाया जाता है बच्चों को. So scabies, it is an important public health disease. Scabies जो है Sarcoptes scabi एक insect होता है, that is itch mite. उसकी वजह से वो ट्रांसमिट करता है एंड वो डिजीज फैलाता है. सो इन दिस सार्कोपेटस स्केबीज ट्रीटमेंट, परसिस्टेंट इचिंग विदाउट न्यू लेजन्स, ये बड़ी अजीब सी बात हुई, दैट इज परसिस्टेंट इचिंग हो रहा है विदाउट न्यू लेजन्स और ट्रीट हो गया पेशेंट, ये क्या बताएगा, ये किस वजह से होगा? ऑप्शन ए को देखेंगे, अ continued allergic reaction that may require symptomatic treatment, a treatment failure requiring a stronger scabicidal treatment, reinfestation from an untreated contact, या development of secondary eczema due to initial manifestation. So इसमें आपको क्या लगता है? ये जो ऑप्शन डी है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एक्जिमा ड्यू टू इनिशियल मैनिफेस्टेशन, ये भी हो सकता है। कई दफा इतना खारिश होता है, इतना इचिंग होता है दैट उसके ऊपर सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी मे बी देयर, बट वो एक्जिमेटस तो नहीं होगा। एक्जिमा इज लाइक मोर यू कैन से स्किन रिएक्शंस। री इन्फेस्टेशन यूजुअली इज नॉट देयर, जब वो बोल रहा है कि नए लेजन्स विदाउट न्यू लेजन्स है ना? सो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। ट्रीटमेंट फेलियर बिल्कुल नहीं है, बिकॉज देर आर नो न्यू लेजन्स। अगर उसने फैलना होता, ट्रीटमेंट फेलियर होता तो वो फैल जाता। अगर आप इसको एक्सक्लूड भी करोगे, अ कॉन्टिन्यूड एलर्जिक रिएक्शन दैट मे रिक्वायर अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, दैट इज द करेक्ट वन बेटा। इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको पोस्ट स्केबीज इच बोला जाता है। वंस वी ट्रीट स्केबीज, जब उसका ट्रीटमेंट हो गया है प्रॉपर, ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? परमेथ्रिन। परमेथ्रिन कितनी डोज में जाता है? 5% डोज में। परमेथ्रिन दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। परमेथ्रिन दीजिए, लिंडेन दो, आइवरमेक्टिन इन सर्टेन केसेस, स्पेशली जब बच्चे को या पर्सन को वी कैन नॉट गिव परमेथ्रिन, या फिर वो बच्चा अगर इम्यूनो सप्रेस्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, in those cases beta we cannot give permethrin and we try to give ivermectin would be a drug of choice. तो ये तो आपके लिए ट्रीटमेंट रहा। जब हम ट्रीट कर लेते हैं उसके बाद भी ये बहुत कॉमन होता है that the patient may come up with post scabies itch. पोस्ट स्केबीज इच क्यों होता है? इट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन जो कि काफी दिनों और हफ्ते तक चलते हैं। पेशेंट को बोलना पड़ता है भैया हौसला रखना है और ये हट जाएगी इच। इसमें ज्यादा खुजली नहीं करनी, इचिंग नहीं करनी, बल्कि उनको हम बोलते हैं कि अपने नाखून काट लो, बिकॉज इचिंग विल बी टू इंटेंस। तो टॉपिकल स्टीरॉइड्स, एंटी हिस्टामिनिक या कोई सूदिंग लोशंस जैसे एलोवेरा जेल भी काम करती है। कोई लोग लौंग का तेल, घर के देसी नुस्खे होते हैं, बट फ्रॉम एमसीक्यू पर्सपेक्टिव प्लीज नोट कैलामाइन लोशंस एंड कूल कंप्रेशंस, टॉपिकल स्टीरॉइड्स, दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पोस्ट स्केबीज इच। एंड ये आपसे सवाल में पूछा गया था, काफी अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द बेस्ट वन टू बी मार्क्ड। लेट अस गो टू नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन देख के मेरे को भी 2 मिनट के लिए लगा यार ये क्वेश्चन में कहीं एरर तो नहीं है, बट लेट्स जस्ट हैव अ लुक। सो दे आर टॉकिंग अबाउट दीज 4 इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ डिजीजेस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, हीट ब्लिस्टर्स एंड स्केबीज। इनको अब मैच करना है। तो मैच करते समय काफी मतलब लेफ्ट एंड राइट यू कैन थिंक लाइक ओवरलैप्स है। स्पेसिफिकली टॉकिंग, मीजल्स का रैश कैसा होता है बेटा? मीजल्स का रैश हमेशा मैक्यूलोपैपुलर रैश होता है। मीजल्स इज ऑलवेज अ मैक्यूलोपैपुलर रैश, और ये मीजल्स का रैश हमेशा क्रॉप्स में आता है।
और ये सारा एक टाइप का रैश आपको दिखता है, मैक्यूलोपैपुलर रैश। ये जो चिकन पॉक्स का रैश है, चिकन पॉक्स के रैश में दो आंसर सही लगेंगे आपको। दैट इज इट इज अ फ्लूइड फिल्ड वेसिकल, ये भी सही है, अभी हमने बात किया। एंड इट इज ऑल्सो अ सेंट्रीपिटल रैश। सेंट्रीपिटल होता है बेटा, मतलब वो बॉडी से शुरू होगा एंड वो लिम्स की तरफ जाएगा, फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी, फ्रॉम सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द लिम्ब। सो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है मोर in abdomen or trunk, and it spreads towards less in limbs or hands. इट इज लेस इन लिम्स और हैंड्स, ये होता है सेंट्रीपिटल। तो अब चिकन पॉक्स का ऑप्शन 1 भी सही है, 2 4 भी सही है। अभी आगे चल के देखते हैं हीट ब्लिस्टर्स। हीट ब्लिस्टर्स होता है बेटा, गर्म से कोई छाला पड़ गया, तो ये जो छाला है दैट विल ऑलवेज बी अ फ्लूइड फिल्ड। वो सेंट्रीपिटल तो नहीं हो सकता, वो स्केली रैश भी नहीं होता। सो हीट ब्लिस्टर्स तो कंफर्म्ड आंसर है कि 1 हो गया। अब ये जो स्केबीज है, स्केबीज रैश इज स्केली रैश विद बरोज। स्केबीज इज ऑलवेज अ वेरी स्मॉल माइन्यूट रैश और उसमें बरोज होते हैं। तो बचा क्या, ये चिकन पॉक्स का जो हमारी कंट्रोवर्सी थी, जो प्रॉब्लम था कि वो सेंट्रीपिटल है या फ्लूइड फिल्म मार्क करना, वो सॉल्व हो गया। चिकन पॉक्स इज सेंट्रीपिटल। 2 मिनट बस इसको ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस टाइप ऑफ रैश। ये जो रैश है, ये छोटे छोटे दाने हैं, दीज आर स्मॉल रैश, एंड ये स्मॉल रैश ये स्केबीज के कैरेक्टरिस्टिक हैं। दे आर नॉट मीजल्स, दिस इज नॉट चिकन पॉक्स, दिस इज नॉट हीट ब्लिस्टर्स। ये स्केबीज के कैरेक्टरिस्टिक स्मॉल पिन पॉइंट छोटे छोटे दाने होंगे, जैसे किसी मच्छर टाइप्स ने काटा है। और अगर इसको ध्यान से देखें तो ये आप देख सकते हो, ये इफ यू कैन अप्रिशिएट ऑन योर डिवाइसेस, ये छोटा सा यू कैन सी द डॉट ओवर हेयर, एंड ये डॉट के साथ आई डोंट नो इफ यू कैन अप्रिशिएट, ये लाइन थ्रेड लाइक फीचर्स जा रहे हैं, ये थ्रेड लाइक लाइंस जा रही हैं। ये जो थ्रेड लाइक लाइंस है बेटा, दीज आर द पाथ, यहाँ पे इचमाइट चला होगा, ये उसके पुराने पाँव के निशान है। सो ये इचमाइट के निशान होते हैं, ऑफन विद बरो मार्क्स विच आर स्मॉल थ्रेड लाइक स्केली लाइंस। एंड ये इच रैश विद स्मॉल पैप्यूल्स होता है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्केबीज। स्केबीज के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं स्मॉल पिन पॉइंट लेजन्स होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल पिन पॉइंट लेजन्स, एंड ये पिन पॉइंट लेजन्स के अंदर बरोज होंगी। ये जो है दिस इज अ टिपिकल हीट ब्लिस्टर, छाला पड़ गया। सो ये जो छाला है, दिस इज अ टिपिकल ब्लिस्टर ड्यू टू हीट। And this over here, what you see over here, this is a characteristic rash from chicken pox. It is a characteristic rash from chicken pox. How will you differentiate it with measles? Measles का जो rash है, that is a maculopapular rash, whereas chicken pox rash, it is a vesicular rash. इसमें वेजिकल्स भी बनेंगे, फ्लूइड फिल्ड वेजिकल्स होंगे। सो बड़ा इजी है और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ये डिफरेंशिएट करना। वेरी गुड क्वेश्चन, दैट हाउ विल यू फाइंड आउट which type of rash has which type of disease has which type of rash. तो I feel that 1 गया 2 के साथ, 2 गया 4 के साथ, तो आपका option A is the best one for you guys to mark in your exam. Let us go to next MCQ. How does pleomorphism influence the measles vaccine effectiveness? बेटा प्लियोमॉर्फिज्म अगर एक वर्ड देखा जाए तो वो चिकन पॉक्स में होता है। काफी स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म होता है मतलब किसी में प्लियोमॉर्फिक, मतलब वो डिफरेंट वेराइटी आ जाए। तो जो चिकन पॉक्स का रैश है, ओके, आई एम टेलिंग यू द कंट्रोवर्सी, जो चिकन पॉक्स का रैश है बेटा, दैट इज प्लियोमॉर्फिक। इसका क्या मतलब होता है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रैश विल बी सीन एट द सेम टाइम। बट यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लियोमॉर्फिज्म इन्फ्लुएंस ऑन द मीजल्स वैक्सीन। ओके, सो इट इज डिफरेंट। सो डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन भी गलत है। काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर ये अजीब सा क्वेश्चन है। यस, इट इज अजीब, बट दे हैव यूज्ड द प्लियोमॉर्फिज्म वर्ड फॉर मीजल्स वैक्सीन रादर देन चिकन पॉक्स। तो प्लियोमॉर्फिज्म इन्फ्लुएंस द मीजल वैक्सीन, इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, enhances vaccine induced immunity, minimal impact due to stable antigenic, and it is rapid mutation. प्लीज नोट, मीजल्स का जो वैक्सीन है बेटा, वो मीजल्स वैक्सीन हमारी बनती है एडमॉन्स्टन ज़ग्रेब स्ट्रेन के साथ, ज़ग्रेब स्ट्रेन के साथ। ये मीजल्स वैक्सीन, इट इज अ लाइव वैक्सीन बनाई जाती है, एंड ये बहुत ही मतलब काफी हद तक ये स्टेबल वैक्सीन है। द मीजल्स वैक्सीन, इट इज काइंड ऑफ ए स्टेबल वैक्सीन। इट हैज रफली 85 to 90% efficacy,
एंड ये बहुत कम चेंज होती है बिकॉज ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, कि वो सर्दी है, गर्मी है, कोई मीजल्स वायरस में कोई म्यूटेशंस नहीं आ रहे. सो इट्स अ वेरी स्टेबल काइंड ऑफ थिंग. सो देयर इज मिनिमम इम्पैक्ट ड्यू टू स्टेबल एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वैक्सीन एंड ऑफ द मीजल्स वायरस एज वेल. सो इसका बेस्ट आंसर ऑप्शन सी है. फैक्चुअल क्वेश्चन है, रटने वाली बात है, इसमें कुछ समझना नहीं है, बस ये सुन लो एंड ये अगर कभी दोबारा रिपीट होता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. लेट अस गो टू नाउ द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स. काफी क्वेश्चंस आए थे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में से. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाको प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम? सो ये अगेन बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन मेरे को लगा. वैसे अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस को देख के ही अपने को इसमें आंसर आ जाता है. लुक एट द ऑप्शंस. ऑप्शन सेज दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स, अवेयरनेस अबाउट एसटीडी एंड मदर टू चाइल्ड. क्या ये इसका ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल लगता है. टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स एंड फ्री एआरटी, ये भी लगता है भाई हम कौन सा एआरटी का पैसा ले रहे हैं. To prevent new infections, provide comprehensive care, support to HIV and strengthen national response, ये भी तो है ही है. We want to prevent HIV. To conduct nationwide HIV testing campaigns and inquire and ensure universal access to ART. ये भी काइंड ऑफ ओके टाइप्स है बिकॉज नेशन वाइड HIV टेस्टिंग कैंपेन हम करते हैं, बट वो HIV वी डोंट गो टू पब्लिक एंड आस्क देम टू गेट HIV टेस्ट डन. बट यस, ब्लड डोनेशंस में हम कर रहे हैं, एंटीनेटल केयर में कर रहे हैं. सो वी डू हैव लेफ्ट एंड राइट मैकेनिज्म्स, इसके भी हैं. ले देंगे, चारों ऑप्शन सही हैं. पर अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन नैको के ऊपर था ही नहीं. क्वेश्चन था कि आपको क्या ये समझ है कि ऑब्जेक्टिव पूछा है. उन्होंने स्ट्रैटेजीज नहीं पूछा, उन्होंने तरीका नहीं पूछा, उन्होंने उद्देश्य पूछा है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम? दे डिड नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज द स्ट्रैटेजीज. इस एमसीक्यू ऑप्शंस में इफ यू लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली, अब इस नजरिए से देखोगे तो आपको दिखेगा कि 3 स्ट्रैटेजीज है, एक उद्देश्य भी है. बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स ये कोई उद्देश्य नहीं है, दिस इज अ तरीका, इट इज अ स्ट्रैटेजी. टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स एंड फ्री एआरटी, ये भी तरीका है स्ट्रैटेजी देने का. टू प्रिवेंट न्यू इन्फेक्शंस, ये तो तरीका नहीं है ना, ये तो कार्य है, ये तो काम करना था. टू प्रिवेंट न्यू इन्फेक्शंस, प्रोवाइड केयर एंड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन, दिस इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नैको प्रोग्राम. फोर्थ ऑप्शन देखो, टू कंडक्ट द नेशन वाइड, ये भी कोई उद्देश्य नहीं है, ये उसका कार्य है, ये उसका तरीका है, ये उसका काम है. दैट इज व्हाट दिस इज आल्सो अ स्ट्रैटेजी. सो इनमें चारों ऑप्शंस वर करेक्ट, बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस. ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर. अगर आप नैको को देखो, 2-4 पॉइंट याद रख लो. नैको प्रोग्राम बेटा, इट करंटली वी आर इन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2021 टिल 2026. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज एज वेल. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा, दैट इज टू प्रिवेंट, give care and treat and to combat the HIV epidemic in India. We want to have you want to end HIV epidemic. End HIV epidemic by year 2030. ये SDG ने हमें गोल दिया है, टारगेट दिया है. इस टारगेट के लिए ऑब्जेक्टिव है कि भैया HIV को प्रिवेंट करिए, उसका केयर करिए एंड ट्रीटमेंट करिए. हाउ डू वी डू दैट? हमारे पास ये उसके तरीके हैं. यूनिवर्सल एक्सेस HIV प्रिवेंशन के लिए सब लोगों को मिलना चाहिए. टेस्टिंग होना चाहिए, ब्लड डोनेशंस का, वॉलंटरी टेस्टिंग, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक टेस्टिंग एंड गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट सर्विसेज. यस, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, स्टिग्मा रिडक्शन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ये सब इसका होना चाहिए. अगर आप बात करें टारगेटेड इंटरवेंशन इन हाई रिस्क ग्रुप्स, ये जो ऑप्शन नंबर 2 थी, टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर हाई रिस्क ग्रुप्स. टारगेटेड इंटरवेंशन जो TI हम करते हैं, TI इन टारगेटेड इंटरवेंशन, इसके अंदर बेटा 4-5 हमारे स्ट्रैटेजीज हैं. कॉन्डम प्रमोशन, management of sexually transmitted infection, then we have as behavior change communication, referrals and community mobilization. Environment should be enabling. ये 5 इसके targeted interventions है for the high risk groups. high risk groups में ये 5 चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि हमें रेफर करना है. community mobilization, people should be mobilized so that they are able to test and avail the health services, enabling environment and all these things. So I think it is common sense that option C is the best one to mark.
Let us go to the next one. National Deworming Day is celebrated on observed on which day? It should not be celebrated. We don't celebrate. हम कोई इसके जश्न और उल्लास से मनाते नहीं हैं. These are called as observed on which date in India. So please note that the National Deworming Days, it is observed on 2 days, that is 10th of February and 10th of August every year in India. National Deworming Days का best answer option B आपका रहेगा. इस National Deworming Day में हम करते क्या हैं? इसमें बेटा हम अल्बेंडाजोल देते हैं, that is to prevent hookworm infections. Prevent and treat. It is to prevent and treat hookworm infections. Albendazole बेटा 1 year to 2 year के बच्चों को it is given at the dose of 200 milligram tablet, and 2 to more than 2 years के बच्चों को it is given at the rate of 400 milligram tablet. 400 की 1 tablet होती है तो common sense 200 की आधी tablet दी जाएगी. This is given on 10th of February and 10th of August every year. This is what we call as National Deworming Days and deworming systems for albendazole to prevent hookworm soil transmitted helminthic infections. Let us move on to next MCQ. Which study design, epidemiology का question आया है, which study design is most appropriate for investigating the relationship between air pollution exposure and incidence of respiratory disease over a period of 10 years. अब यही सवाल कुछ साल पहले नॉर्सेट में पहले भी आया था. दैट वी टुक डेटा फ्रॉम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वेदर डिपार्टमेंट से डेटा लिया एंड हॉस्पिटल से हमने लंग डिजीजेस के लिए बताओ कौन सी स्टडी है. ठीक है, उसका आंसर कुछ और था. अब आज जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टडी डिजाइन बताना है आपको बिटवीन एयर पोल्यूशन लेवल एंड द इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेसेस ओवर 10 years. तो ये 10 साल के ऊपर है, तो ये क्रॉस सेक्शनल तो हो नहीं सकता बिकॉज क्रॉस सेक्शनल इज अ स्नैपशॉट स्टडी. केस कंट्रोल नहीं हो सकता बिकॉज केस कंट्रोल यू स्टार्ट विद डिजीज एंड नॉन डिजीज. यहाँ पे आप रिलेशन ढूंढ रहे हो एयर एक्सपोजर का, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर एंड इंसिडेंस. इंसिडेंस किस में ढूंढते हो बेटा? इंसिडेंस हम कोहॉर्ट में देते हैं, एक्सपेरिमेंटल तो वैसे भी नहीं है. सो व्हाट इज द बेस्ट आंसर टू मार्क ओवर हियर? कोहॉर्ट स्टडी. प्लीज रिमेंबर, ये काफी दफा पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द स्टडी ऑफ चॉइस? What is the study of choice? What is the study of choice to find out prevalence? Prevalence के लिए क्या बोलेंगे आप? It is a cross sectional study. अगर कोई बोले what is the study of choice to find out the incidence of disease, तो क्या मार्क करोगे? It is a cohort study. अगर कोई बोले what is the study of choice for rare डिजीजेस, तो क्या बोलेंगे? रेयर डिजीज है बेटा, बीमारी रेयर है, तो भैया हम शुरू करेंगे केस कंट्रोल स्टडी से. एंड अगर कोई बोले व्हाट इज द स्टडी ऑफ चॉइस फॉर रेयर रिस्क फैक्टर्स, तो भैया हम शुरू करेंगे कोहॉर्ट स्टडीज से. सो रेयर रिस्क फैक्टर इज कोहॉर्ट. व्हाट इज द स्टडी ऑफ चॉइस फॉर नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज? नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज के बीमारी कैसे कैसे फैलेगी आगे, कैसे बढ़ेगी आगे. करेक्ट आंसर इज कोहॉर्ट. कोहॉर्ट स्टडीज. प्लीज रिमेंबर, ये भी सवाल आता है इनके दूसरे नाम क्या हैं. जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है इट इज ऑल्सो नोन एज AKA. AKA मतलब ऑल्सो नोन एज. इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रांसवर्स स्टडी. जो केस कंट्रोल स्टडी है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी. वेयरएज जो कोहॉर्ट स्टडीज हैं they are also called as follow-up studies. They are also called as a prospective study design. They are also called as longitudinal studies. Longitudinal studies भी इनका दूसरा नाम है. So ये काफी सारे सवाल आते रहते हैं इधर उधर, कोई ना कोई कहीं ना कहीं फंसा देता है. These are the different study of choice for most appropriate for investigating the relationship between air pollution and incidence. Because they asked about incidence, therefore we would mark cohort study. अब जो कुछ साल पहले सवाल आया था, coming back to that. So कुछ साल पहले सवाल आया था that what is the study of choice for finding the air pollution exposure? Air pollution exposure and data कहाँ से लिया था? Data was from the weather department and comparing with the hospital data for lung disorders, lung diseases. ये कौन सी स्टडी हुई बेटा? ये जो स्टडी का नाम है दिस इज
ecological study. Why ecological study? Because ecological study में you do database studies and ये population based study है, यहाँ पे unit is a population. So ये फर्क है बेटा, इस दफा ऑप्शंस में भी इकोलॉजिकल नहीं था, so obviously you would like to go with the cohort study as your single best answer. Going to the next MCQ, the prevalence of tuberculosis infection in the community is best estimated by which of the following? Options are chest X-ray, AFB, acid fast bacilli smear मतलब sputum smear, ट्यूबरकुलिन टेस्ट या सीबी नैट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड ये आपको टेस्ट करता है कि क्या आपको टीबी के बारे में पता है, क्योंकि ये सवाल जो है बेटा अगर ध्यान से देखें तो ये टीबी डायग्नोसिस के बारे में पूछ ही नहीं रहा. ये क्वेश्चन पूछ रहा है दैट डू यू नो द प्रेवलेंस ऑफ टीबी इन्फेक्शन. इट इज आस्किंग अबाउट द टीबी इन्फेक्शन. टीबी डिजीज बारे नहीं है, ध्यान देंगे, इट इज अबाउट टीबी इन्फेक्शन. तो बेटा ये काफी दफा पूछा जाता है व्हाट इज द स्टडी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन ट्यूबरकुलोसिस. द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू फाइंड आउट, ध्यान से सुनेंगे, टू फाइंड आउट टीबी इन्फेक्शन. ध्यान से समझे कि टीबी इन्फेक्शन होना एक बात है, टीबी डिजीज होना अलग बात है. सो जो इनिशियल लंग में इन्फेक्शंस होता है बेटा, that we get Gons focus and all these things, Gons complex, this is what is TB infection. Now most of us 95% are going to heal this TB infection में तो heal हो जाएंगे हम लोग. अब कुछ जो बच जाएंगे वो जाते हैं बेटा लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के अंदर. उनके अंदर जो टीबी बैसिलाई है वो गुड नाइट मोड में सो रहा है. अब ये जो लेटेंट टीबी बैसिलाई है, दिस में गेट रीएक्टिवेटेड समटाइम बिकॉज ऑफ डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स एंड सो ऑन. ये रीएक्टिवेशन टीबी जो है सेकेंडरी टीबी कहलाता है एंड दिस इज व्हाट इज अ टीबी डिजीज. जो इनिशियल टीबी इन्फेक्शन है बेटा विच इज यूजुअली हील्ड, इस टीबी इन्फेक्शन को हम प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं. इट्स अ प्राइमरी बेसिक ट्यूबरकुलोसिस. यहाँ तक क्लियर है. सो नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू फाइंड आउट टीबी इन्फेक्शन, कि बंदे में टीबी एंटीजन है कि नहीं है. यस, आई थिंक यू गॉट इट राइट. इट इज अ MON2 टेस्ट. इट इज ट्यूबरकुलिन स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट, TST, स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट. या फिर यहाँ पे इग्रा भी आ सकता है. व्हाट इज इग्रा? इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसे, इग्रा टेस्ट. एंड लेटेंट टीबी के लिए बेटा सिंगल बेस्ट आंसर इज इग्रा is a better test than TST. IGRA is more sensitive and better test. IGRA stands for interferon gamma release assay. And TB disease, अब बात आई इस बीमारी की कि TB बीमारी कैसे पता चले. What is the best investigation and the most quickest investigation? The best investigation is always sputum smear examination, sputum microscopy. Sputum microscopy जो है it is a very quick investigation, 30 minutes में result आ सकता है. And sputum microscopy is quite reliable. It is high sensitivity and high specificity, but sensitivity is more higher. So sputum microscopy is the best investigation for TB disease. But कई दफा sputum में भी negative. तो what is the confirmation of TB? Confirmation के लिए हमारे पास nucleic acid test है, CB nucleic acid amplification test, CB-NAT, cartridge based nucleic acid amplification test. And how will you rule out tuberculosis in HIV disease? बंदे को HIV है, उसमें अगर आपने स्पूटम किया तो स्पूटम वैसे ही नेगेटिव आएगा बेटा. देयर इज वेरी हाई चांस ऑफ स्पूटम नेगेटिविटी इन HIV केसेस. तो स्पूटम काम का नहीं है तो क्या बचा हमारे पास? टू रूल आउट ट्यूबरकुलोसिस इन HIV वी रिलाई मोस्टली ऑन CB-NAT इन्फेक्शंस, CB-NAT डायग्नोसिस. सो ये कई दफा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आता है. खैर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था दैट वाज सुपर डुपर इजी क्वेश्चन. मारो छक्का मारो आंसर. आंसर टू दिस इज TB इन्फेक्शन बताना है तो ट्यूबरकुलिन स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट इज द बेटर आंसर. AFB स्मीयर इसमें गलत हो जाएगा आपका आंसर. सो चलो अगला सवाल देखो. व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ DMPA इंजेक्शन? ये बड़ा कॉमन सवाल है, हमने ये बहुत ज्यादा लेक्चर्स में बात की है अबाउट DMPA, डेपोप्रोवेरा या फिर DMPA इंजेक्शन. DMPA बेटा डेपोमिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट. This depomedroxyprogesterone acetate, it is available in India as Antara injections. Antara injections beta, it is given at the dose of 150 milligrams and it is given every 90 days. 90 days का क्या मतलब है? It is given 3 monthly.
इट इज गिवन 3 मंथली। और डेपोमेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, इसमें ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो इसका जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट इज नॉट काइंड ऑफ कि बड़ा फीमेल में ओबेसिटी आ जाएगा या वेट गेन होगा, डिसलिपिडीमियास, नहीं। इसका साइड इफेक्ट इज ओनली वन। डू यू नो दैट 80% ऑफ द फीमेल्स हु टेक डेपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, they will eventually land up into amenorrhea. Amenorrhea after at least 1 to 2 years of use, amenorrhea हो जाता है, मतलब less bleeding हो जाता है। And because female में less bleeding होता है, therefore it is safe for use in females with anemia। ये इसका एक काइंड ऑफ गुड इफेक्ट हो गया कि डेपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट अंतरा जो है वो एनीमिक फीमेल्स में भी काम आ सकता है। लास्ट पॉइंट इज डेपोमेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट बेटा कब तक दे सकते हैं? अगर ये फीमेल की ड्यू डेट है, अगर ये उसकी ड्यू डेट है फॉर वैक्सीन, फॉर दिस इंजेक्शन, ये एवरी 3 मंथली देते हैं ना, या 90 डेज में देना है। तो मान लो उन्होंने 1 जनवरी को लिया, तो जन निकल गया, फेब निकल गया, मार्च निकल गया, तो वो 1 अप्रैल को आएंगी दोबारा फीमेल। तो ये अगर मान लो ड्यू डेट है, क्या आपको पता है कि अगर वो ड्यू डेट पे नहीं आना सकती या नहीं आना चाहती, तो वो 2 हफ्ते पहले एंड 4 वीक्स बाद तक, ये उसको टोटल बेटा ग्रेस पीरियड मिला है। इन दिस टाइम शी कैन कम फॉर DMPA इंजेक्शन एनी टाइम। She can come for DMPA injection anytime 2 weeks prior to the due date और 4 weeks after, 1 महीने तक वो आ सकती है। तो अगर वो भूल गई लेना तो कोई चक्कर नहीं है, अगले हफ्ते आ जाओ, अगले हफ्ते आ जाओ, अगले हफ्ते आ जाओ, 4 हफ्ते तक अलाउड है कि वो लेट आ सकती हैं। दैट इज अबाउट DMPA। तो क्या लगता है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ DMPA? बेस्ट आंसर इज 3 months। अभी हमने बात किया। Coming over to the next MCQ बेटा, in the context of अनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव, a 6x6 स्ट्रैटेजी क्या है? अब इसके ऊपर भी अगर तुम लोग गलत करके आए हो तो ये बड़े दुख वाली बात है मेरे लिए। अनीमिया मुक्त भारत, इट इज 100 स्टार MCQ बेटा। अनीमिया मुक्त भारत, इट इज 100 स्टार MCQ। हर एग्जाम में ये सवाल हो ही नहीं सकता कि ना पूछा जाए। ये सवाल इज 100 स्टार MCQ। इट इज बाउंड टू कम अनीमिया मुक्त भारत। It is 6x6 program. What is 666? 6 interventions, 6 beneficiaries, and 6 institutional mechanisms are there. It is to decrease anemia prevalence in the country. कितनी anemia कम करनी है? 3% per year के रेट से हमें, it is we want to decrease anemia by 3% per year. anemia मुक्त भारत। लेट अस टेक अनदर MCQ। एक और क्वेश्चन आया था अनीमिया मुक्त भारत के ऊपर, अंडर एनीमिया। सो इसका आंसर क्या था? सॉरी, वी कुड नॉट डिस्कस द ऑप्शन। सो इसमें आंसर क्या था? इज इट 6 टाइप्स ऑफ एनीमिया आउटकम, 6 टाइप्स ऑफ एनीमिया, डिफरेंट ऑप्शन, क्लिनिकल टेस्ट, या फिर इट इंक्लूड 6 इंटरवेंशन, 6 बेनिफिशियरीज एंड 6 इंस्टीट्यूट मैकेनिज्म? सो ऑब्वियसली आई थिंक इट इज कॉमन सेंस, ऑप्शन ए इज द बेस्ट वन टू मार्क। And क्योंकि ये easy था तो I just skipped it over, but anyways that is the answer. Let us go to next MCQ. Similar MCQ, अनीमिया मुक्त भारत पे एक और सवाल आया। Under अनीमिया मुक्त भारत strategy, which of the following target groups is not included for prophylactic iron and folic acid supplementation? तो कौन सा टारगेट ग्रुप इसमें नहीं इंक्लूड होता? बेटा अभी हमने 5 मिनट पहले बात करी थी कि अनीमिया मुक्त भारत में 6 बेनिफिशियरीज है, 6 इंटरवेंशंस है और 6 इंस्टीट्यूट्स मैकेनिज्म है। आपसे एग्जाम में ना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, पक्की बात है। जो इसके 6 इसके फंक्शंस हैं या इंटरवेंशंस हैं, इनमें से सिर्फ पहले 2 काम किए हैं। व्हाट आर द फर्स्ट 2? फर्स्ट इज, आपने याद रखना है दैट वी आर गिविंग प्रोफाइलैक्टिक आयरन एंड फॉलिक एसिड, दोनों आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दोनों जाएंगी। सेकेंड इंटरवेंशन हमारी होती है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग भी अभी हमने बात किया, वी आर गिविंग अल्बेंडाजोल। 10 फरवरी 10 अगस्त को अल्बेंडाजोल गोली भी दी जाएगी। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वी हैव बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, जिसमें आपको याद रखना है कि ये इसकी टैगलाइन है बेटा, वी वांट टू हैव अ सॉलिड बॉडी एंड अ स्मार्ट माइंड। सॉलिड बॉडी स्मार्ट माइंड इसकी टैगलाइन है। देन वी ऑल्सो वांट टू यूज डिजिटल मेथड्स एंड पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट के जहां पे अनीमिया डायग्नोज हो वहीं से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। मैंडेटरी प्रोविजन, ये अभी भारत का जब हमारा पार्लियामेंट सेशन बैठा था 2024-25 में, सो ये बिल भी पास हुआ है फॉर
iron folic acid fortification of all the government health funded programs. So ये भी एक mandatory provision बना है about iron folic acid fortification of all the food which is supplied under ICDS program, Women Child Health Women Child Development Ministry, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, कहीं पे भी जहाँ पे सरकारी खाना मिल रहा है। एंड लास्ट इज टू एड्रेस द नॉन न्यूट्रिशनल। तो ये इसके 6 इंटरवेंशंस है। अब जहां तक बात है 6 बेनिफिशियरीज की, दिस टेबल इट इज 100 स्टार एमसीक्यू टेबल। ये टेबल हर साल एग्जाम में आता है। तो अगर आप इसमें टेबल में देखोगे विच आर द बेनिफिशियरीज, 6 महीने से 5 साल के बच्चे, 5 to 10 years, 10 to 19 years, 20 to 49, and pregnant females and lactating females. ये इसके 6 beneficiaries हैं। beneficiary 1, 2, 3, 4, 5 is pregnant and 6th is lactating females. तो ये इसके 6 beneficiaries हैं and we are giving them iron and folic acid daily, weekly, ये टेबल में लिखा हुआ है। You have to study this. So what do you think is the best answer? Direct question, बेकार question, easy question, पर हमारा इसका आंसर। So children को मिलेगा 6 से 5 साल, yes मिलेगा। नेक्स्ट एडोलसेंट गर्ल को मिलेगा, yes मिलेगा। लैक्टेटिंग फीमेल को मिलेगा, yes 6 महीने तक लैक्टेटिंग फीमेल को मिलेगा। तो क्या आपका बेस्ट आंसर है इसमें? ऑब्वियसली कॉमन सेंस, पोस्ट मीनोपॉजल को नहीं देते। दैट इज द best answer to be marked in this question. Let us go to next MCQ. All of the following facilities are typically provided under the JSY except. सारी facilities JSY के द्वारा हम देते हैं भारत देश में, एक्सेप्ट आपको गलत बताना है। कैश असिस्टेंस टू फीमेल्स, पोस्ट नेटल केयर, फ्री ट्रांसपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट फॉर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। क्या लगता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? बेटा 2-4 बातें अगर JSY की करो तो JSY इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब होता है कि ये भारत केंद्र सरकार के द्वारा स्कीम है। इस JSY का काम क्या है? व्हाट इज द उद्देश्य? व्हाट इज द वर्क? द वर्क दे हैव टू डू इज दे आर गोइंग टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना है। अब कैसे करें, कैसे लोगों को हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में लेकर आए? उनको लाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, पैसा फेंक और लोगों को बुला। So incentive to the females, incentive to the females. It is incentive based program. अब ये जो इंसेंटिव है कितना मिलता है बेटा? ये मदर को मिलता है 1000 रुपए से लेके 2000 रुपए तक, मदर एंड आशा दोनों को। सो आशा वर्कर का जो अमाउंट है दैट यू कैन रिमेंबर इज फिक्स्ड। आशा वर्कर को 400 to 600 मिलेगा। आउट ऑफ दिस 1000 to 2000। क्या कहने का क्या मतलब है? अगर आप इसको ऐड करोगे बेटा, व्हाट इज द एडिशन? 1400 प्लस 600 2000 हो गया ना, और लोएस्ट वाला देख लो 1000। तो याद रखो भारत सरकार 1000 to 2000 रुपीज दे रही है, जिसमें से 400-600 इज फॉर आशा वर्कर। ये इंसेंटिव दिया जाता है। और ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये फीमेल्स के बेनिफिट के लिए है, प्लस उनके लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट देखना है, उनके लिए बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। तो अगर आप देखो इसके ऑप्शंस को, क्या इसमें कैश असिस्टेंस होगा? यस, कैश असिस्टेंस है फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, दिस इज ट्रू। पोस्ट नेटल केयर फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न, यस, मदर को पैसे मिलते ही इसलिए फॉर पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर न्यूबॉर्न। फ्री ट्रांसपोर्ट टू एंड फ्रॉम हेल्थ फैसिलिटी, यस, दैट इज ऑल्सो पार्ट, ऑल्दो JSY के नहीं है बट GSSK के अंडर आता है। अब कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट फॉर प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस नहीं है इसके अंदर। इट इज नॉट फॉर। ऑप्शन डी इज द एब्सोल्यूट रॉन्ग आंसर, ऑल्दो इसमें ऑप्शन बी भी कुछ हद तक लाइक गलत या सही कह सकते हो, बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट द पोस्ट नेटल केयर। ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है कि माँ जो है इंस्टीट्यूट में आएगी, उसके लिए हम दे रहे हैं। पोस्ट नेटल के लिए होता तो वो तो फिर शायद हम घर पे भी दे सकते थे, बट ठीक है, वी कांट से दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन डी तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। इट इज नॉट अबाउट द प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। ऑप्शन डी इज द बेस्ट वन टू बी मार्क फॉर दिस MCQ. Let us go to next MCQ and analyze क्या सही क्या गलत। Which of the following is the primary rule of गम्बूजिया फिश? आ गए हमारे मॉस्किटोज मच्छर के ऊपर गम्बूजिया फिश इन एंटी लार्वल मैनेजमेंट। अब ये जो गम्बूजिया फिश है ये बड़ी नटखट फिश है बेटा। गम्बूजिया फिश यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादा पाई जाती है, इंडिया में भी अब काफ़ी हम यूज़ करते हैं। गम्बूजिया फिश का हमारी फिशरीज बनी हुई हैं।
सो एंटी लार्वल मैनेजमेंट है, ये सबको पता है, इट ईट्स द मॉस्किटो लार्वा, है ना। मच्छर उड़ता मच्छर तो नहीं खाएगा, मछली तो पानी में है, मच्छर तो उड़ रहा है, सो मच्छर नहीं खाएगा, मच्छर का लार्वा खाएगा। So, which of the following is the primary role to reduce bacterial contamination? It feeds on larva to promote growth of plants, to increase the oxygen level. क्या लगता है? बेकार क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है। So it is to feed on the mosquito larva and feed on their population. गम्बूजिया फिश जो है, ये छोटी सी फिश होती है, 40 से 70 मिलीमीटर की फिश होती है। यूजुअली ये मतलब आप कह लो ग्रीनिश या सिल्वरिश टाइप ऑफ फिश होती है, छोटी सी 4 से 7 सेंटीमीटर की इतनी सी फिश हो गई है। और ये भाई साहब, ये छोटी फिश जो है, ये मच्छर का लार्वा खाती है, और ये बड़ी एग्रेसिव, बड़ी खूंखार फिश है। जितनी छोटी उतनी ये दिखने में छोटी है पूरी खूंखार। क्यों? क्योंकि ये लार्वा भी खाती है। क्या आपको पता है, ये पानी के अंदर जो इकोसिस्टम है, जो एल्गी है, जो प्लैंकटन है, वो भी खा जाती है। तो ये एल्गी है या प्लैंकटन्स हैं, वो भी खा जाती है, और ये जो है गम्बूजिया फिश है। सो इट्स अ वेरी वेरी एग्रेसिव फिश। तो इसको देख के पानी में डालना होता है, क्योंकि ये पानी में तहलका मचा देगी, मच्छर का लार्वा भी खाएगी और बाकी सबको भी खा जाएगी, गम्बूजिया फिश। So what is the best answer to be marked in this question? It feeds on mosquito larva, हमने लिख लिया। Let us go to the next MCQ. Which of the following is a long-acting reversible contraceptive method? So बेटा, long-acting reversible contraceptive method जो होते हैं, वो लार्क मेथड कहलाते हैं। ये जो लार्क मेथड है, ऑप्शंस है कंबाइंड ओसी पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या मेल कॉन्डम्स। प्लीज नोट, मेल कॉन्डम तो है नहीं, है ना। ये लॉन्ग एक्टिंग तो है नहीं, ये तो है नहीं कि एक दफा ये बंदे ने यूज किया, वो ताउम्र 10 साल तक यूज कर रहा है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि वो तो इमरजेंसी में यूज हुई है। ऐसा तो नहीं है एक दफा कर लिया तो वो ताउम्र अपने को पूरी प्रोटेक्शन मिल गई। कॉमन सेंस है ना यार। So obviously, emergency contraceptive pill is not the correct answer. Male condom is not the correct answer. अब बात रही कि लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आपको लगता है कि ऑप्शन ए या बी में से आप बताओ यार। इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग मेथड बेटा, लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इम्प्लांट्स होते हैं ना, इम्प्लांट्स ये यूजली 3-5 साल के लिए होते हैं। ओसी पिल्स तो 28 दिन के लिए होती हैं, उसमें से भी ये लॉन्ग एक्टिंग नहीं है कि एक ओसी पिल खा ली तो ये 10 महीने तक काम करेगी, ऐसा भी नहीं है। सो प्लीज नोट, इसमें ऑप्शन बी इज द बेस्ट वन फॉर यू गाइस टू मार्क। जो लार्क मेथड्स होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये आईयूडी होते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में जैसे कॉपर टी डिवाइस, कॉपर टी 380 ए, ये कितने साल के लिए वैलिड होता है बेटा? 10 साल के लिए। इसके बाद आता है कॉपर 375 मल्टी लोड डिवाइस, मल्टी लोड डिवाइस, ये कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए। मिरेना, ये जो सारे हैं बड़े कॉमनली यूज्ड हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये 5 इयर्स के लिए होता है। सो बनी ना बात, ये लॉन्ग एक्टिंग है, रिवर्सिबल है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। इम्प्लांट्स जो हैं बेटा 3 to 5 इयर्स के लिए। सिंगल बेस्ट आंसर आ जाए तो लेट्स जस्ट डिलीट द कंफ्यूजन, 3 साल मार्क करिए, एंड 3 इयर्स इज गुड इनफ फॉर द इम्प्लांट्स। अंतरा को भी कुछ लोग मानते हैं बिकॉज इट इज एप्लीकेबल फॉर 3 months, बट इसका बहुत सारा इश्यूज हैं, ये प्लस या माइनस। कहने का मतलब है, मैंने अंतरा यहाँ इसलिए लिखा है बेटा, 2 टाइप ऑफ एमसीक्यूज आएंगे। अगर ऑप्शंस में आ जाए 3 ही ऑप्शंस हो, कॉपर, अगर 4 ऑप्शंस हो गए, कॉपर टी 380A 375 मिरेना एंड अंतरा, अब बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग एक्टिंग। ऑब्वियसली आप अंतरा मार्क करोगे, अंतरा इज नॉट ए लॉन्ग एक्टिंग। बट अगर ऑप्शन में आ जाए, ऐसा आ जाए, ऑप्शन 5 बन जाए ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव ही मार्क करना अकलमंदी हुई ना। इसलिए मैं बोला था अंतरा को कुछ बुक्स, some books, some researches, some authors would take into long acting, which is kind of doubtful. It acts only for 3 months, right? But IUDs and implants, they are definitely the long-acting reversible contraceptive. There is no guideline के अंतरा नहीं है और अंतरा है, ऐसा नहीं होता। You have to see कि यार options में क्या आ रहा है, उसके बेस पे I think आप सब लोग काफी इंटेलिजेंट एंड समझदार बच्चे हो, तो यू विल बी एबल टू फाइंड इट नाइसली इन द एग्जाम। बोझ नहीं लेना इस बात का, टेंशन नहीं लेनी है। अगला सवाल देखो, बिंदास चलो। सो द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीट पिलर ऑफ द NTEP रिलाइज हेविली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। इंग्लिश तो बड़ी हाई फाई मारते हैं नॉर्सेट में। सो कहते हैं कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीट पिलर जो है उसका NTEP का,
तो कौन सा कंपोनेंट? एक्टिव केस फाइंडिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस, एक्यूरेट डायग्नोसिस, सर्वेलेंस ऑफ ड्रग, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग हेल्थ केयर एंड इंश्योरिंग। तो मेरे को नहीं आता ये क्वेश्चन का आंसर। मान लो कि मैंने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस हमारा यही हाल है, हमने नहीं पढ़ा हुआ ये। अब वो वैसे ही ट्रीट पिलर, एनटीपी पढ़ लो, बहुत बड़ी बात है, उसके पिलर कौन पढ़ता फिर है। तो चलो, अब अगर इस क्वेश्चन को ही देखो आप कैसे सॉल्व किया हमने। क्वेश्चन है ट्रीट पिलर है, तो एक्टिव केस फाइंडिंग तो मुझे नहीं लगता ये एक बात होगी। इट इज नॉट अबाउट कम्युनिटी अवेयरनेस, ये तो उसकी डायग्नोसिस की बात हुई ना। सो दिस विल रिलेट टू डायग्नोसिस, ये तो गलत हो गया ना। Accurate diagnosis with provision of quality assured anti-TB drugs and patient support for adherence, ये लग रही है बात, क्योंकि ये तो ट्रीटमेंट की बात हुई है ना। नेक्स्ट देखो, सर्वेलेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस पैटर्न्स ऑन न्यू ट्रीटमेंट एंड एडवोकेसी फॉर इंक्रीज फंडिंग। ये फंडिंग को बढ़ाने के लिए, पता नहीं सही है कि नहीं है, देखते हैं आगे। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रीटमेंट से क्या लेना देना, ये भी तो डायग्नोसिस की बात हुई। अब तुम खुद सोच के बताओ कि सर्वेलेंस मार्क करूं या ट्रीटमेंट देना मार्क करूं। कॉमन सेंस ही बात नहीं लग रही कि हम ट्रीटमेंट देना मार्क करेंगे, क्योंकि सर्वेलेंस तो कोई ट्रीट पिलर का पार्ट नहीं ना हुआ। तो बेटा इसके 4 पार्ट्स होते हैं, डिटेक्ट, ट्रीट, बिल्ड एंड प्रिवेंट। ये इसके 4 पिलर्स हैं, डिटेक्ट, ट्रीट, बिल्ड एंड प्रिवेंट। डिटेक्ट का मतलब होता है कि हमें फाइंड ऑल द पीपल विद टीबी केसेस, डिटेक्ट कर लो। ट्रीट होता है ट्रीट ऑल द पीपल विद हाई क्वालिटी ड्रग्स। बिल्ड होता है कि हमें बिल्ड करना है एक ऐसा सिस्टम जहां पे पॉलिसीज, इंस्टीट्यूट, सर्वेलेंस ऑटोमेटिकली चल रहा है। एंड प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी एंड उनको प्रॉपर सर्वेलेंस मैकेनिज्म करो। सो ये उसके प्रिवेंशन में काम आ गया। तो ये इसके 4 पिलर्स होते हैं। बेस्ड ऑन दिस द क्वेश्चन वाज देयर। बेटा अगर नहीं भी आता, इफ यू रीड द ऑप्शंस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन बी इज द बेस्ट आंसर टू मार्क इन दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फोर लो। 2 क्वेश्चन आए इस दफा क्वेश्चन टीबी के ऊपर, सो एनटीईपी के ऊपर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर 4 पिलर्स ऑफ एनटीईपी एलिमिनेशन प्रोग्राम एक्सेप्ट। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर 4 पिलर्स, डिटेक्ट, ट्रीट, रिहैबिलिटेट या प्रिवेंट। अभी आपने पढ़ा डी टी बी पी, इसकी स्ट्रैटेजी होती है डिटेक्ट, ट्रीट, बिल्ड एंड प्रिवेंट। सो ये रिहैबिलिटेट नहीं है, ये बिल्ड है। सो व्हाट इज द बेस्ट आंसर फॉर अस टू मार्क? ऑप्शन सी इज द बेस्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
So this is part 2 of the NORSET 8.0 recall. So now moving over to the next question, beta. Again, TB का question है, National TB Elimination Program, frequently asked in your exam. The composition of the TB treatment kit, हर एक का एक patient wise boxes होते हैं बेटा. TB के अंदर ना PWB होते हैं. These are called as patient wise boxes. So हर मरीज का अपना एक डब्बा होता है. Particularly the specific drugs included is primarily determined by. क्वेश्चन है कि टीबी में जो पेशेंट वाइज बॉक्सेस हैं या जो टीबी ट्रीटमेंट किट हम देते हैं मरीज को या डॉट्स प्रोवाइडर को सो दैट वो मरीज को दे पाए, इट इज डिटर्मिन्ड बाय the drug susceptibility testing and treatment regime as per NTEP guidelines, the patient preference and perceived tolerability, the availability of various anti-TB drug formulations available in the market, या फिर socio-economic status and ability to afford वाला तो गलत हो गया ना, because TB treatment is free of cost. अब अगर आप बाकी ऑप्शंस देखो, बाकी ऑप्शंस देखिए, अगर द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस टीबी ड्रग्स इन द मार्केट, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि दुकान में जितनी मिलती हैं वो थोड़ी ना हम देंगे. Patient's preference and perceived tolerability, it is not dependent on the patient. Obviously, common sense, it is dependent on the drug susceptibility testing के मरीज drug sensitive TB है या drug resistant TB है. बेटा drug sensitive TB में what treatment we are giving? This is standardized module. We are giving 2 months of HRZE, and in continuation phase we are giving 4 months of HRE to all adults. ये all adults को ये treatment मिलती है. So ये fixed dose combination में होती है. What is FDC? FDC, it stands for FDC. FDC stands for fixed dose combination. So ये जो the fixed dose combination is given to all patients, मतलब depending on their weight, but and it also depends on the drug susceptibility testing and standardized treatment. So option A is the best one for you guys to mark in your exam, right? So याद रखें, ड्रग सेंसिटिव टीबी में हम ये देते हैं. ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में भी ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड है. So drug resistant TB में the treatment that we are giving is 6 months of zero. What is zero beta? Zero stands for, Z stands for pyrazinamide, E stands for ethambutol, R stands for rifampicin, and O stands for levofloxacin. So easy हो जाता है याद रखने के लिए. O stands for levofloxacin and not ofloxacin. नहीं तो ZERL याद करना पड़ेगा. तो ZERO याद कर लो. O stands for levofloxacin, right? So pyrazinamide, ethambutol, levofloxacin and rifampicin, it is given for 6 months. अब जो shorter MDR regime है वो at least months याद रखो. It is given for 9 to 11 months. And ये कुछ regime अजीब से numbers लिखे हैं. What are these numbers? These are clofazimine, high dose isoniazid, levofloxacin, bedaquiline, pyrazinamide, ethambutol and ethionamide. तो इनका नाम कैसे आप याद कर सकते हो? ये हम देते हैं 4 to 6 months के लिए. ये देते हैं CHO, है ना, levofloxacin, BZE. क्या याद रखो? चोबजी. सो 4 से 6 महीने के लिए बेटा हम देंगे चोबजी. एंड नेक्स्ट इज 5 महीने के लिए ये 4 ड्रग्स जाती हैं. 5 months के लिए हम देते हैं कोजी. 5 months के लिए we give is cozy. What is cozy? Clofazimine, pyrazinamide, levofloxacin and ethambutol. So this is what we give as shorter MDR regime. बस shorter याद रख लो. Shorter MDR regime के multi drug resistant tuberculosis में देते हैं. What is MDR? MDR क्या होता है बेटा? H and R resistance जब combined होगी, that is called as MDR. तो ऑब्वियस ही बात है, नेशनल टीबी प्रोग्राम में हम एक स्टैंडर्डाइज regime दे रहे हैं as per the Government of India NTEP guidelines. Let us go to next MCQ. A key component of the Ayushman Bharat digital mission ABDM that will uniquely identify individuals in the health ecosystem. What is it? ये डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है बेटा. इट वाज टॉक ऑफ द टाउन. ये काफी सवाल पूछा भी गया है. इट इज आभा आईडी. आपने देखा होगा हर एक पेशेंट को नेशनल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल रहा है विद हेल्थ आइडेंटिफिकेशन. सो उसको हम आभा नंबर कह रहे हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज आभा आईडी. सो आयुष्मान भारत आईडी सिस्टम, आभा आईडी, आभा आईडी.
So these ABHA IDs are for health number identification under the Ayushman Bharat Digital Mission. Coming over to next MCQ, what is the primary objective of the Ayushman Bharat program launched by Government of India? अगर बेटा आपने वो ये क्वेश्चन नहीं ना आता, बड़े दुख की बात है, बिकॉज भारत सरकार बहुत पैसा खर्चती है अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द आयुष्मान भारत प्रोग्राम. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, आयुष्मान भारत प्रोग्राम. इसके ऑप्शंस तो पढ़ो जरा. इज इट टू प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशंस टू ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 years? क्या ये है? To provide universal health insurance to all Indian citizens, reduce maternal mortality by ensuring institutional deliveries, या फिर strengthen the primary healthcare and provide financial protection against catastrophic health conditions. So क्या लगता है इसमें अपने को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अंडर दी आयुष्मान भारत? बेटा आयुष्मान भारत भारत में इंडिया में इट वाज स्टार्टेड अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJ. इट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. इस योजना के तहत 50 करोड़ पॉपुलेशन, दैट इज रफली 1/3 ऑफ द इंडियंस, है ना, 150 करोड़ की आबादी है, 50 करोड़ पॉपुलेशन were given, they are currently also given health insurance for up to 5 lakh rupees per family per year. So this is 50 crore population, which is roughly equal to 10 crore families. 50 करोड़ पॉपुलेशन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है, याद रखिए. इट इज 50 करोड़ पॉपुलेशन, 5 लाख रुपीज हेल्थ इंश्योरेंस, नो लिमिट ऑफ एज, जेंडर, टाइप ऑफ डिजीज, जो मर्जी हो जाए. It is Government of India is going to take care. This is cashless benefit given to people under the Ayushman Bharat program or the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. इसमें एक छोटी सी अपडेट भी है that there is also another program called as Pradhan Mantri Vay Vandana Yojana. Under the Vay Vandana Yojana, beta, government has also given the same amount, that is 5 lakh rupees health insurance to all senior citizen in India. To all the senior citizens in India whose age is more than 70 years, उनको भी इस प्रोग्राम का बेनिफिट मिलेगा. So that is about the Ayushman Bharat Jan Arogya, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना. Is it to provide free vaccinations? गलत है यार, वो तो मिशन इंद्रधनुष है. To provide universal health insurance, बिल्कुल हम देते हैं यूनिवर्सल, पर आगे तो पढ़ो. Is it given to all Indian citizens? All Indian citizens तो गलत हो गया, because it is given under Vay Vandana and under the Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, that is 50 crore only. 50 crore eligible population, that is 10 crore families. So is it to reduce maternal mortality? ना जी, मतलब है ठीक है, it might be one of the aspect could be to reduce maternal mortality, but that is not the case. So it is to strengthen primary healthcare, ठीक है, to provide financial, that is important, financial protection against the catastrophic cost of health. कुछ कैंसर हो जाए, कोई दुर्घटना युक्त हो जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, तो उसके लिए भारत सरकार हेल्थ इंश्योरेंस देती है. ऑप्शन डी इज द best for us to mark in this question. How often is data reported under the health management information system? काफी लोग आप में से ही HMIS में काम कर रहे होंगे, NRHM में होते हैं, CHO का काम होता है. So HMIS का जो इंडियन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम HMIS पोर्टल है हमारा, so उसमें रिपोर्टिंग बेटा ये रटने वाली बात है, मंथली होती है. जो IDSP है उसकी रिपोर्टिंग, IDSP की जो रिपोर्टिंग होती है बेटा, वो आपको रिपोर्टिंग वीकली रिपोर्टिंग होती है. साल में 52 हफ्ते, साल में 52 वीक्स, सो 52 रिपोर्ट्स शुड बी जनरेटेड पर ईयर. जो HMIS है, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसकी रिपोर्टिंग मंथली होती है. इट इज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन एंड डेटा ऑपरेटर्स हैं, डेटा मैनेजर्स हैं हु विल अंडरटेक दिस एक्टिविटी ऑफ मंथली रिपोर्टिंग. इट इज मंथली, रटने वाली बात है. Let us go to next MCQ. What is the primary objective of Pradhan Mantri Jan, अभी तो पढ़ा आपने, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंडर आयुष्मान भारत? To provide free OPD services. Free OPD services, ठीक है, OPD services भी हैं हमारे पास, yes दे रहे हैं. To provide free medicines to rural health center, वो तो वैसे ही दे रहे हैं, उसमें कोई आयुष्मान भारत की थोड़ी ना जरूरत है. Provide MCH services in urban, वो तो वैसे ही दे रहे हैं.
ये तीनों तो है ही हैं, ये तो सब ऑब्वियस सी बात है, बट इन्होंने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो ऑप्शन डी को पढ़ो, टू इंश्योर कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, मैंने बताया इट इज टू कैशलेस अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफिक, कोई दिक्कत आ जाए परिवार को ऑन सेकेंडरी टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन, उसके लिए है असल में ये। सो ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर टू बी मार्क्ड फॉर यू गाइज फ्रॉम आयुष्मान भारत पॉइंट ऑफ व्यू। चलो अगला सवाल देखो, द फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड अंडर द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कंफ्यूज नहीं होना, दिस नॉट जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इट इज मातृ वंदना योजना, is primarily intended to contribute towards what? Towards the meeting the enhanced nutritional needs of pregnant females? Yes, maybe. Covers the full cost of childbirth in private hospitals? Providing a substantial income replacement for the entire duration of maternity leave? Incentivizing male partners to participate in child care? So क्या लगता है आपको कि मातृ वंदना योजना किसके लिए होगी? इज इट टू प्रोवाइड फुल कॉस्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ? ये गलत है, बिकॉज एक तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए नहीं है, मतलब वी डोंट फोकस मोर ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एंड दूसरा भारत सरकार क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में केयर का पैसा देगी, तो बी तो गया। सब्सटैंशियल इनकम रिप्लेसमेंट, ये थोड़ी ना कोई बात हुई कि मैटरनिटी लीव पे जाएंगे और उनको इनकम रिप्लेस, वो ईएसआई का काम था। मेल पार्टनर्स को इंसेंटिवाइज, ये भी गलत है। सो बी सी डी तो वैसे ही गलत है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसका डायरेक्ट आंसर ही ऑप्शन ए है, मीटिंग द एनहांस्ड रिक्वायरमेंट्स। इट कुड बी न्यूट्रिशनल नीड्स, इट कुड बी फाइनेंशियल नीड्स। बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे के लिए नए कपड़े आने हैं, बच्चे के लिए खिलौने बनने हैं, बच्चे के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना है, बच्चे के लिए काफी खर्चा तो होगा ना, एंड फीमेल अगर प्रेग्नेंट है उसका खर्चा होगा, so that she appropriately maintains her nutrition, her safety, her hygiene, her sanitation, उसके लिए मातृ वंदना योजना बनाई गई थी। 3-4 सवाल इस मातृ वंदना योजना के ऊपर जरूरी हैं। मातृ वंदना योजना बेटा मिशन शक्ति प्रोग्राम एक शुरू हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, दैट इज मिशन शक्ति, ये इंट्रोड्यूस हुआ। मिशन शक्ति के 2 पार्ट्स थे। मिशन शक्ति के 2 पार्ट्स हैं, एक समर्थ्या है और दूसरा संबल है। संबल मतलब होता है संभाल के, सो दैट इज फॉर सिक्योरिटी ऑफ फीमेल्स। समर्थ्या इज टू मेक देम समर्थ, फीमेल समर्थ। समर्थ कैसे बनाएंगे? टू मेक देम कैपेबल इनफ टू गिव देम एम्पावरमेंट। ये जो एम्पावरमेंट का काम है दैट इज कॉल्ड एज मातृ वंदना योजना। अब हाल ही में रिसेंटली मातृ वंदना योजना वर्जन 2.0 शुरू किया गया भारत सरकार से। इन दिस दे आर गिविंग 5,000 रुपीज एज कैश इंस्टॉलमेंट्स, कैश इंसेंटिव्स इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। पहले बेटा 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, नाउ इट इज इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपए की होगी जब फीमेल फर्स्ट एएनसी कंप्लीट करवाएगी एंड शी विल गेट हर एएनसी रजिस्टर्ड विद द एएनएम। एएनएम का काम होता है फीमेल में गांव में एरिया में प्रेगनेंसी रजिस्टर करना, तो रजिस्टर हुआ तो 3,000 डन। नेक्स्ट इज 2,000 रुपीज फीमेल को मिलेगा जब वो बच्चा पैदा हो गया। वो बच्चा जो पैदा होगा वो चाहे हॉस्पिटल में हो, प्राइवेट में हो, कहीं भी हो, द चाइल्ड बर्थ इज रजिस्टर्ड एंड द चाइल्ड ऑल्सो रिसीव फर्स्ट डोज वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? बीसीजी लग जाए, ओपीवी लग जाए, हेपेटाइटिस बी लग जाए एवं डीपीटी या पेंटावेलेंट लग जाए, तब फीमेल को 2,000 रुपए दोबारा मिलेंगे। So पहले मिला 3,000, then she'll get 2,000, 5,000 rupees cash incentive under Matru Vandana Yojana version 2.0 under Mission Shakti under Samarthya program. सो अगर सेकंड बच्चा, अभी रिसेंटली ये अपडेट आया कि सेकंड बच्चा अगर गर्ल चाइल्ड है, फीमेल को दोबारा 6,000 रुपए मिलेंगे, दैट इज फॉर प्रमोटिंग न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, ऑफ द मदर, एवरीबडी। तो 6,000 रुपीज ओनली इफ इट इज अ गर्ल चाइल्ड। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट मातृ वंदना योजना। 4-5 पॉइंट्स। इंस्टॉलमेंट्स कितनी? 5,000। कितनी इंस्टॉलमेंट्स कितनी? 2। टोटल अमाउंट 5,000। सेकंड बॉर्न चाइल्ड के लिए 6,000 अगर वो गर्ल चाइल्ड हो। सो इसका क्राइटेरिया भी आपने कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द बेस्ट टू बी मार्क्ड। अगला सवाल देखो, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर डेमोन्स्ट्रेट्स अ होम बेस्ड प्रेगनेंसी किट टू फीमेल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज होम बेस्ड यूरिन प्रेगनेंसी किट। सो निक्षय बेटा ये तो नहीं है ना, ये तो टीबी का नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है।
टीबी नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर है। निश्चय क्या होता है? निश्चय इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। निश्चय इज द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। निश्चय। टुडे क्या है बेटा? टुडे इज अ विजाइनल स्पॉन्ज। टुडे इज अ विजाइनल स्पॉन्ज, और ये विजाइनल स्पॉन्ज अब यूज नहीं करते। वाई? बिकॉज ऑफ टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एंड सो ऑन। सहेली क्या है? दैट इज सेंट क्रोमैन। सेंट क्रोमैन। सहेली जो है सेंट क्रोमैन है। सहेली बेटा सेंट क्रोमैन छाया टैबलेट्स के नाम से मिलती है। 30 मिलीग्राम 30 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। फीमेल को वीकली पिल्स खानी होती है। दीज आर टेकन एज वीकली पिल्स, और ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, ओरल पिल्स हैं, और ये नॉन स्टीरॉयडल है। मजे की बात है, दीज आर नॉन स्टीरॉयडल। Non-steroidal. Why? Because they contain centicroman 30 milligram, which has the active chemical called as ormeloxifene. अब ये जो निश्चय किट्स हैं, ये हैं बेटा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ये यूपीटीज हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। इसका नाम है निश्चय। निश्चय करना। सो ऑप्शन बी इज द बेस्ट वन टू बी मार्क्ड इन दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। What is the key difference between OCPILS and POP? ये भी कोई पूछने वाला सवाल हुआ। इतने पढ़े लिखे आप लोग, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो बेटा, ये तो सबको पता ही होगा। OCPIL क्या है, POP क्या है? OCPIL contains only progesterone, POP contains estrogen and progesterone both. ये भी गलत है। So this is wrong answer ना। OCPIL is used in emergency, POP is for regular use, ये भी गलत है। OCPIL contains estrogen and progesterone, POP is only progesterone, that is the correct answer. Obviously नाम ही है, POP stands for progesterone only pills. POP is only for breastfeeding, OCPIL is not, ये भी गलत आंसर है। So it's a direct question. I don't think we need to spend time on this. What is OCPILS and what is POP? Common sense. Coming to next MCQ, the first documented patient in a disease epidemic within a population is called as index case, primary case, secondary case, suspected case. बेटा तीन types of case होते हैं। एक होता है primary case. Who is primary case? Primary case is the first case in the community. Then we also have something called as index case. Index case कौन होता है? They are the first observed, जो सबसे पहले observe होगा case. First observed case is called as the index case. And who are secondary cases? Secondary cases are the subsequent cases which arise from the primary case within one incubation period, that is called as secondary cases. So अगर आप क्वेश्चन को देखो, the first documented patient, first documented मतलब वो मरीज आया होगा ना हमारे पास, ऐसे ही थोड़ी ना डॉक्यूमेंट हो गया, तो that is called as index case. That is called as index case. That is the best for you to mark. Coming to next option, next question, which of the following is not a true statement about the contraceptive shown below? So ये हाथ में एक रॉड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर आप ध्यान से देखो, इट इज अ रॉड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड ये हाथ में पड़ा हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक इज नॉट ट्रू? अच्छा आपने गलत। सो ये रॉड है, तो ये बेटा हम इम्प्लांट की बात कर रहे हैं, ये इम्प्लांट की बात कर रहे हैं। इट इज इफेक्टिव फॉर 3 years, कैन बी यूज्ड फॉर फीमेल्स वेयर ईस्ट्रोजन इज नॉट सुटेबल, इज इफेक्टिव फॉर लैक्टेटिंग फीमेल्स, इट हैज 80-90% इफेक्टिविटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? आपने गलत बात बताना है। इम्प्लांट्स के बारे में आपको एक जानकारी दे दूं पहले कि इम्प्लांट्स जो है ना, इम्प्लांट्स में यूजुअली प्रोजेस्टेरॉन होता है। पुराना टाइम था जब उसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल होता था, अब आजकल एटोनोजेस्ट्रॉल के आ गए हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जो होते हैं बेटा, ये सब डर्मल इम्प्लांट्स होते हैं। ओपीडी प्रोसीजर होता है, छोटा सा प्रोसीजर है, फटाफट से इम्प्लांट डल जाता है। ये जो इम्प्लांट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन काफी एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? इट विल सप्रेस ओव्यूलेशन बिकॉज इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये ओव्यूलेशन को रोकता है। प्लस मतलब ये ओवुलेशन रोका, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्लस ये स्पर्म को भी रोकता है बाय मेकिंग द सर्वाइकल म्यूकस मोर थिक। तो इसका दोनों इफेक्ट्स है बेटा, इम्प्लांटेशन भी रोकेगा, फर्टिलाइजेशन भी रोकेगा, बट प्राइमरली इसका अगर आप एक मैकेनिज्म पूछें तो इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द मेन मोड, बट यस इम्प्लांटेशन भी रोकेगा। इम्प्लांट जो है ना, बड़ा एक्टिव केमिकल है और इसके कुछ फायदे हैं। फायदा एक तो ये हुआ कि ये लॉन्ग एक्टिंग होता है बेटा, हमने पहले भी बात किया था इन सम अनदर एमसीक्यू इन दिस सेशन ओनली, दैट इट इज एप्लीकेबल फॉर 3 years, तो ये तो लंबी देर चलेगा।
नो डेली पिल, सुटेबल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज ये प्रोजेस्टेरॉन ओनली होता है, सो ये लैक्टेशन में काम आ सकता है। इट कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम एंड इट कैन बी इंसर्टेड इवन आफ्टर अबॉर्शन, मिसकैरेज, चाइल्ड बर्थ, कभी भी डाल सकते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ वेरी सेफ एंड डू यू नो इट हैज द हाइएस्ट effectivity. It has the highest effectivity. Effectivity is maximum with implant, roughly around 99% effective होते हैं। They are in fact the most effective contraceptive known to us, that is implants. इनका छोटा सा एक साइड इफेक्ट है कि ये कई दफा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कर देते हैं बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड छोटा ओपीडी प्रोसीजर है और ये एक्सपेंसिव है। सो अगर आप इतना जानते हो इम्प्लांट को, आजकल लेटेस्ट इम्प्लांट विच इज लाइक 100% इफेक्टिव, दैट इज इम्प्लेनॉन। इम्प्लेनॉन बेटा छोटे से सबडर्मल इम्प्लांट्स है, इवन एक इंजेक्शन पेन जैसा होता है, वी जस्ट पुट इट एंड पेन से वो खुद ही फीमेल इंसर्ट कर सकती है, बट ऑफ कोर्स अंडर सुपरविजन फ्रॉम ए पब्लिक हेल्थ नर्स और समथिंग। सो ये इम्प्लांट्स की कहानी है। सो अगर आप देखें, इट इज इफेक्टिव फॉर 3 years, yes it is used in females where estrogen is not suitable, obviously it is effective in lactating, it is 90% की जगह it is 99% effective, that is the only one which is kind of wrong answer over here। चलो अगला सवाल देखो, a bed capacity of the non first referral unit CHC is। प्लीज नोट CHCs, अगर आपको याद हो तो हमने काफी सारी CHC की बात करी है बेटा। CHCs रूरल एरियाज में हो सकती हैं या CHC अर्बन एरियाज में हो सकती हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज बच्चे, अर्बन की अगर हम बात करें, शहरों की बात करें, तो या तो वो नॉन FRU CHC अर्बन की हो सकती है या फिर वो FRU अर्बन CHCs हो सकती हैं। Now, most of the CHCs in urban areas, they have been converted. We are proud to say कि वो लोग they have been converted to FRUs urban CHCs. अब जो rural areas में है, the rural CHCs, they can be of two types. We can have non-FRU CHC or FRU CHC. Okay, what is FRU beta? FRU stands for first referral units. राइट। सो जो नॉन FRU CHC है ना, मतलब वहां पे FRU नहीं बना हुआ, वहां पे बेटा 30 to 50 बेड्स होने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है मिनिमम 30 बेड्स होने चाहिए। FRU में 50 to 100 बेड्स हो सकते हैं। FRU अर्बन CHC इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ 100 बेडेड यूनिट, राइट। नॉन FRU तो अर्बन सेक्टर्स में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, अगर वो हैं तो वो 50 से 100 बेड्स वाली होंगे। जो FRU urban CHC हैं, that is still 100 beds, non FRU is 30 to 50 beds। So अगर क्वेश्चन आए बेड कैपेसिटी ऑफ नॉन फर्स्ट रेफरल यूनिट, सो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 30 बेडेड। सो ये काफी दफा एग्जाम में सवाल आया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सब सेंटर, अ PHC, अ CHC। याद रखें बेटा, PHC is for 3000 to 5000 population, 3000 in hilly area, tribal area, forest area, 5000 in plain areas. PHC is for 20 to 30,000 population and CHC is for 80,000 in hilly tribal forest area, 1,20,000 in plain areas. Coming to next के CHC में, PHC में कितना स्टाफ होता है, इसमें याद रखो 3 to 4 स्टाफ होता है। मैंने अंदाजन 5, 15, 50 याद रखा है। सो PHC में 15 लोग, CHC में 50 लोग, सब सेंटर में 5 पीपल। ये भी सवाल आता है कि सब सेंटर इज द ओनली सेंटर विच इज मैनेज डायरेक्टली बाय द सेंटर गवर्नमेंट एंड PHC एंड CHCs दे आर मैनेज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। प्लस आपने बात तो नंबर ऑफ बेड्स की अगर आप बात करें, अगर आप नंबर ऑफ बेड्स की बात करें तो हाउ मेनी बेड्स आर देयर इन सब सेंटर बेटा? 0 to 3 बेड्स होते हैं, 0 to 2 बेड्स वी कैन हैव or 3 beds, and PHC is roughly 6 to 10 beds minimum। PHC के beds have been upgraded to 6 beds in every PHC and CHCs are roughly 30 to 100 beds, 30 in rural areas, non-FRU rural areas we have 30 bedded, otherwise generally speaking it is 50 to 100 beds। जितने FRU बन जाएंगे वो 100 bedded होंगे। जो district hospitals हैं बेटा, they are usually more than 100 bedded hospitals, ये भी पता होना चाहिए। और हमारा बेड्स का नॉर्म कितना है? इट इज यूजुअली 2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन।
इट इज यूजुअली 2 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन। पुरानी किताबें आपको 1 बेड पर 1000 कहेंगे, बट ये अपडेट है भारत सरकार इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स IPHS स्टैंडर्ड्स 2022 का अपडेट है, दैट वी हैव अपग्रेडेड फ्रॉम 1 बेड टू 2 बेड्स पर 1000 population in the healthcare system. So I think what is the best one for you guys to mark कि non FRU first referral unit community health center पूछा है, उन्होंने urban नहीं बोला, तो best answer is 30 beds. नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सन हेल्थ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। द कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सन हेल्थ इज कॉल्ड एज एक्सपोजर, ससेप्टेबिलिटी, इन्वेजन या कॉलोनाइजेशन। सो कॉलोनाइजेशन होता है बेटा कहीं पे जाके रहना, इन्वेजन होता है आक्रमण करना, ससेप्टेबल होता है कि वो होस्ट ससेप्टेबल है, तो अगर वो कॉन्टैक्ट है एक्सपोजर के तो वो हम कहते हैं कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आपको याद हो, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। व्हाट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बेटा? एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। इसके ऊपर एक सवाल आता है, व्हाट इज एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल? एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल सेम आंसर होता है बेटा, एजेंट है, होस्ट है, एनवायरनमेंट है, विद टाइम इन द सेंटर। एंड ये टाइम के साथ साथ जो बीमारी है वो अगर ऐसे होगी तो ये ओवरलैप करेगी। दिस इज वेयर वी हैव इज द डिजीज। इसको, इस कॉन्सेप्ट को व्हाट डू वी कॉल इट एज? epidemiological triangle. So they are talking about environmental factors. What is this? This is the exposure is the best answer for you guys to mark. Moving to next MCQ, I think just 2-3 more MCQs. Globally, the single largest cause of mortality from non-communicable disease is attributed to. Globally, the largest cause of mortality is attributed to cardiovascular disease. क्या आप जानते हो? Just information for you guys. क्या आप जानते हो that the proportional mortality rate of cardiovascular disease in India? What did I say? Proportional mortality rate for proportional mortality rate for cardiovascular disease in India कितनी है? proportional mortality rate क्या होता है? what is proportional mortality rate? अगर आपने epidemiology के lectures पढ़े हो तो आपको जरूर आना चाहिए that proportional mortality rate is deaths due to a disease, deaths specific for a disease divided by total deaths। मतलब टोटल भारत में जितनी डेथ्स हो रही हैं उन डेथ्स में से कार्डियोवैस्कुलर की डेथ्स कितनी है, ये सवाल मैंने पूछा आपसे। अंदाजन लगा सकते हो बेटा, रफली 32% ऑफ इंडियन डेथ्स इन इंडिया दे आर बिकॉज ऑफ वन डिजीज कार्डियोवैस्कुलर। बाकी 66 आर ड्यू टू ऑल अदर डिजीज, मेटर्नल मोर्टालिटीज, ये मोर्टालिटी, वो मोर्टालिटी, ये बीमारी, वो बीमारी। हार्ट से रिलेटेड 1/3 डेथ्स होती है, which is huge, and that is what the question is, that the largest mortality from non-communicable is always attributed to cardiovascular diseases. And now coming to the next MCQ, what is the approximate total fertility rate of India as per the recent updates? Beta, what is total fertility rate? It is a 10-star MCQ frequently asked in your exam. Total fertility rate, TFR, total fertility rate, it is the total number of children a female will bear. Please note, it is the total number of children, it's not daughters. Total number of children a female will bear during her reproductive years, assuming the current age group specific fertility rates. So याद रखें, टोटल बच्चे कितने पैदा होंगे एक फीमेल को विद द एज ग्रुप स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स। इस एज ग्रुप में इतने बच्चे, इस एज ग्रुप में इतने बच्चे, पूरे देश के, पूरे एरिया के। दैट इज व्हाट वी कॉल एज टोटल फर्टिलिटी रेट। इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर अबाउट द कंप्लीट फैमिली साइज। इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इज अ इंडिकेटर फॉर कंप्लीट फैमिली साइज। सो बेटा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? कि कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने बच्चे पैदा होंगे इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग कॉल्ड एज CPR। CPR स्टैंड्स फॉर कपल प्रोटेक्शन रेट। कहा जाता है दैट इफ द CPR इज मोर देन 60%, मतलब कि 60% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन अगर उनको कॉन्ट्रासेप्टाइज कर दो। कपल प्रोटेक्शन रेट होता है कि कितने फीमेल्स को, कितने कपल्स को कॉन्ट्रासेप्शन मिल रहा है।
So if more than 60% they are contraceptives, कहा जाता है that the total fertility rate of that area will be less than 2.1, and यदि TFR 2.1 हो जाए तो NRR जो है that will be equal to 1. NRR 1 is the final thing you want to achieve because this is called as a replacement level. It is called as replacement level NRR. तो बड़ी सिंपल सी बात है, उन्होंने पूछा कि भारत देश का TFR कितना है। बेटा, वी आर वेरी प्राउड टू से दैट the current value of total fertility rate for India is 2.0. We have already achieved it. How did we achieve it? Because we are again very proud to say that the couple protection rate for India is 67%. भारत का जो कपल प्रोटेक्शन रेट है 67% है, टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.0. कुछ और इंडिकेटर्स है जो रीसेंट 2025 के अपडेट्स हैं बेटा, ये रीसेंट 2025 के एसआरएस के अपडेट्स हैं, एसआरएस अपडेट्स इन 2025. प्लीज रिमेंबर दैट भारत का क्रूड बर्थ रेट दैट इज 19.3, द क्रूड डेथ रेट इज 7.5, द नेचुरल ग्रोथ रेट, भारत का एनुअल ग्रोथ रेट नहीं, एनुअल ग्रोथ रेट इज स्टिल होवरिंग अराउंड 0.91. The natural growth rate has decreased from 13 to 11.8, 12 के करीब है. The infant mortality rate, we are proud to say, 1 point और कम हुआ है 27. The maternal mortality is 93 now. So ये आपसे काफी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये recent 2025 डेटा अपडेट है. So for this question बेटा, what is the current TFR that we have in India? It is 2.0 to 2.1. अगर single best answer पूछें तो आपको 2.0 ही मार्क करना है. इट इज 2.0 फॉर इंडिया, एंड इंडिया इज वेरी प्राउड टू से दैट कि as per the recent NFHS data we got the total fertility rate as 2.0. And with that बच्चे, thank you so much for joining in this whole discussion series about the NORCET exam, and all the very best. Keep on studying. एग्जाम में ना ये बड़ा जरूरी होता है कि जितना आपने डेटा लिया है ये सब पढ़ो, और ये पुराने जो PYTs हैं हमारे, ये जितने पुराने PYTs हैं बेटा, PYT का मतलब होता है प्रीवियस ईयर टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को जरूर अपनी कॉपी में लिखो और इनके ऊपर सारा कुछ पढ़ो, राइट, एंड दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड. टीबी के ऊपर क्या क्या टॉपिक्स आए, HIV में क्या क्या टॉपिक्स आए, दैट इज द थिंग विच विल हेल्प यू. अगर कोई पुराना कोई भी क्वेश्चन ले लो, अगर ये वाला क्वेश्चन ले लो आप, वैसे तो ये वाला बहुत बेकार क्वेश्चन था, बट मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लो, अब आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा? नहीं, सिमिलर टॉपिक होगा, सेम टॉपिक होगा, बट चेंज हो जाएगी ऑप्शंस, टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाएगी. तो जो आपने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत में पढ़ा है, उसमें से आएगा. सो ये टॉपिक्स पढ़ने बड़े जरूरी है. मेक श्योर यू कीप ऑन रिवाइजिंग. ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड टाइम.